guys, welcome back to another video of Group Study. And today we're going to learn about understanding economics, the first chapter of economics. And if you have not seen the earlier video about the definition of economics, then please go on to my channel and watch them. Understanding economics, let's recap what happened till yet. We have learned the definition given by four different economists. The first economist, named as Adam Smith, also named as the father of economics, gave definition pertaining to wealth. The second, Alfred Marshall, gave definition pertaining to welfare. The third, Leonard Robbins, gave definition pertaining to scarcity. And last but not the least, the father of modern economics, Samuelson, who gave definition on the basis of growth oriented. Thus, here we have learned the recap of what we've been learning from the past 1 week. Now let's start with micro and macroeconomics. Now by the name itself, you should get to know that micro means small and macro means large. Let's start with it without wasting any time. So it's for the students of ISC board. So enjoy watching. Now let's get to the another slide where we're going to learn about microeconomics. Now what is microeconomics? As I said, the word micro, it means small. Let me get this straight. Micro is derived from a Greek word means micros. Thus, the meaning of the word micros or micro is small. Now microeconomics studies the economic behavior of individual economic unit and individual economic variables. Let's put it more easy. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी किस चीज की करता है? एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की. मतलब अभी तुम्हारे नीचे कोई ग्रोसरी स्टोर वाला है या मे बी कोई इंडस्ट्री है. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है उन छोटे छोटे शॉप्स की, उन छोटे छोटे हाउस होल्ड्स की या फिर वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज या फर्म्स की. इसीलिए द एग्जाम्पल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज एंड ऑल आर इंडिविजुअल, मतलब सिंगल. इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. हम छोटे वे में इसको स्टडी करते हैं. अब हम बताते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडस्ट्री में क्या इंफॉर्मेशन गैदर करता है, कि कैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी इनकम को अमॉन्ग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अभी समझो मेरा एक छोटा सा बिजनेस है. मैं अभी अपने बिजनेस से इतना पैसा कमा रही हूँ. अब उस पैसे का इतना मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ. मैं वो इन्वेस्ट कहाँ पे कर रही हूँ? अब मैं जानती हूँ कि अगर मेरे नीचे एम्प्लॉयज हैं तो उन्हें सैलरी मिलती है, उन्हें वेजेस मिलते हैं, तो मैं उनको सैलरी दे रही हूँ. हाँ, वो अपनी सैलरी से खुश है, ऐसा नहीं उनको कोई दिक्कत है. देन मैं उसको कहाँ पे ऐसा इन्वेस्ट करती हूँ जहाँ पे मेरी बिजनेस की डेवलपमेंट होती है या ग्रोथ होती है. तो ये सब पढ़ने वाली होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो अगर हम इसे इंग्लिश में डालें तो ये होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ हाउ द इंडिविजुअल कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट हिज इनकम अमंग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो एज टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी. Microeconomics also seeks to explain how the individual firm decides at what price to sell the product, how much to produce, what amount of product will maximize their profit, and how to minimize the cost of production. In other words, microeconomics examines how resources are allocated among the various individual firms and industries, how the prices of various products are determined, and how the output produced is shared among those who cooperate in the production of the output. अब हमको ये चीज समझ में आ गई होगी होपफुली. अभी मैं इसे और इजियर वे में डालूं और मैं इसे हिंदी में समझाऊं rather than speaking in English. समझो ये एक बंदा है जो इकोनॉमिस्ट है या फिर कोई एक बंदा जो इकोनॉमी मतलब इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, ठीक है. और ये है मेरे बिजनेस का मेन बिजनेस. समझो मैं बस यहाँ पे एक छोटा सा घर जैसा कुछ बना देती हूँ. अब ये जो इकोनॉमिस्ट है ये मेरे इंडस्ट्री या मेरे फर्म पे आके मुझे क्या देखे, ये क्या नोटिस करेगा मेरे फर्म में? ये मेरे फर्म में पहला नोटिस करेगा कि मेरे एम्प्लॉइज कैसे काम कर रहे हैं. सेकंड, मैं इन्वेस्ट कहाँ पे कर रही हूँ, मैं इन्वेस्ट कहाँ पे कर रही हूँ. एंड जो वो लास्ट चीज देखेगा वो देखेगा, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि कितना मैंने अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचा, बाय एंड सेल्स इसके बारे में पढ़ेगा. मैं कितने में बेच रही हूँ और मुझे कितना मिल रहा है, क्या वो उसके वर्थ है जितने में मैं उसको बेच रही हूँ. क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, व्हाट प्राइस टू सेल द प्रोडक्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो इनफैक्ट ये ढूंढेगा कि कैसे मैं अपने बिजनेस में, मेरे बिजनेस में ये ढूंढेगा कि डेवलपमेंट कैसे लाना है. तो ये एक चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए अभी के अभी, क्योंकि ये चीज
ज्यादा इतना पूछी नहीं जाती, बट ये जितनी पूछी जाती है वो इसकी डेफिनेशन है, इसके एग्जांपल्स है, एंड व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस, एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी. नाउ लेट्स गेट टू द अनदर स्लाइड. Now my macroeconomics. Now मैंने बोला macro means large या big. Now the prefix macro is derived from a Greek word macros meaning large. अभी macroeconomics is the study of economy as a whole. The unit of study of economics is the entire company rather than a part of it. तो यहाँ पे मैंने इस macro economics को micro economics से थोड़ा सा ये कर दिया, कंपेयर किया. तो अगर मैं बोलूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट क्या है, तो आप ये नहीं लिखोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज है, नहीं. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज होल, मतलब एक पूरी कंट्री, एक पूरा नेशन कितना प्रोड्यूस करती है, पूरा नेशन कितना डेवलप्ड है. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन और अ कंट्री. नाउ हम लोग थोड़ा इंग्लिश में जाते हैं और इसके सेंटेंस देखते हैं. तो यहाँ पे है माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स व्हाई समटाइम्स द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट नियर अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड व्हाई at some other times there is a high degree of unemployment. Why sometimes there is full utilization of the economy's productive capacity, and why at some other times there is underutilization of the economy's productive capacity. It also seeks to explain why sometimes the economy experiences a high rate of economic growth and low rate of economic growth. At some other times, why sometimes the economy faces the problem of sharp rise in price, that is problem of inflation, and why at some other times the price level remains stable or even falls. Now in short में मैं बोलूँ और in easy में ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स जस्ट डील करती है ब्रॉड कैपेसिटी या एक ब्रॉड एरिया से, जो ज्यादा ध्यान कहाँ पे देखता है, फुल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट में, कैपेसिटी या फिर अंडर कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन पे, लो और हाई रेट ऑफ ग्रोथ पे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मतलब हम बोलते मार्केट गिर गई, स्ट्राइक पड़ा है, ये सब देखने वाली कौन होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है. हम बोलते हैं स्ट्राइक गिरा है तो हम ये नहीं बोलते सिर्फ ये महाराष्ट्र का स्ट्राइक गिरा है या सिर्फ दिल्ली का, हम बोलते हैं इंडिया का मार्केट गिरी है या ये गिरी. तो लेट्स गो टू द अदर स्लाइड जहां पे हमें बहुत इजी पड़ेगा सब कुछ समझना. डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक. नाउ पहला टॉपिक है यूनिट ऑफ स्टडी. नाउ वी नो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, अगर हम बिना देखे भी इसका आंसर दे तो हम दे सकते हैं. यूनिट मतलब एरिया या कोई नंबर. Now economic behavior of individual economic unity, मतलब individual economic मैंने बताया था एक individual company या firm या industry. Now microeconomics is an economic behavior of a economy a whole. इसमें मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट है इसमें आप उसका डेफिनेशन ही लिख दोगे काफी होगा. एंड ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर दो बिकॉज काम में आएगा. Now let's go to the second topic, focus of study. Now deals with the determination of prices and quantities in individual market. क्या चीज डील करता है, determination of prices, कितना प्राइस लग रहा है, मैंने बोला मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस, एंड क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी है मेरे पास कि मैं स्टॉक रख सकूं या सेल कर सकूं अपना खुद का बिजनेस में. इंडिविजुअल मार्केट, मैंने बोला है इंडिविजुअल मार्केट. तो जो भी हो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है और नीचे के भी सारे दोनों एक दूसरे से लिंक होंगे. Now deals with broad economic aggregate like national income, total employment. मैंने बोला national income, total employment, मतलब इसमें मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स कि शॉर्ट में जब मैंने बताया था तो मैंने बोला था किस चीज के बारे में बात करता है, अंडर कैपेसिटी प्रोडक्शन, लो और हाई रेट ऑफ ग्रोथ, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ. इस चीज में सबसे ज्यादा ध्यान कौन देता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. और मनी से रिलेटेड कोई भी चीज में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला कौन है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्योंकि मनी से क्यों ध्यान ज्यादा देता है, ये जब ये तीन इंडस्ट्री की, समझो ये तीन इंडस्ट्री है, इन तीन इंडस्ट्री के मनी के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पता है कि भाई ये इतना कमाता है, ये इतना कमाता है, ये इतना कमाता है, तो इनका एग्रीगेट टोटल जो होगा वो क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, है ना. वो तुम्हारी पूरी नेशन, सोचो ये एक छोटा सा नेशन है, बस सोचो उसमें सिर्फ तीन इंडस्ट्रीज हैं जो सब कुछ प्रोवाइड करती हैं. जस्ट एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक्स ने अपना काम कर दिया, यहाँ पे मनी 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 उनका ढूंढ लिया. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या देखेगी कि कितना इनका स्कैरसिटी है, कितना ग्रोथ है, कितना डेवलपमेंट है, सारा उस डेफिनेशन पे बेस्ड. तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या करेगी, एग्रीगेट टोटल ऑफ दिस इंडस्ट्रीज इज इक्वल टू द इकोनॉमी, मतलब हमारी इकोनॉमी कितनी है, हम लोग क्या बोलते हैं हमारी इकोनॉमी कितनी है, तब हम लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं.
Now let's start with the next point, which is basic parameter. Now basic parameter microeconomics का मैंने अभी आपको बोला, ये एग्जांपल से रिलेटेड मनी which is equal to price, मनी और प्राइस एक ही है. और जो सेकंड है मैक्रोइकोनॉमिक्स का है वो है नेशनल इनकम. हम सब पूरी नेशन का इनकम देखते हैं, मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम वो जानते हैं, ये दोनों लिंक्ड है. Now different perspective, bottom up view. Now method of study, equilibrium analysis. In partial equilibrium analysis we make the assumption of ceteris paribus order, that is other things being equal. For instance, while formulating the law of demand in microeconomics we study the relationship between price and demand on the assumption that factors other than the own price of the commodity remains the same. समझ में आया क्या है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में? क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर बिजनेस का प्राइस और डिमांड देख रहे हैं, बल्कि हम क्या नहीं देख रहे हैं, कॉमोडिटी. माइक्रोइकोनॉमिक स्टडीज, सो इसमें इसके रिलेटेड microeconomics studies the interdependence of microeconomic variables like aggregate demand, aggregate supply, aggregate consumption, aggregate investment. ये वाला जब मैंने एग्जांपल दिया था तो मैंने क्या बोला था, क्या होता है microeconomics aggregate of whatever money ये microeconomics ने ढूंढा. तो ये चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए. ये एनालिसिस शब्द हम सब जानते हैं, एनालिसिस मतलब उसको एनालाइज करना या फिर उसको प्रेजेंट करना या उसका टोटल निकालना. Now nature of assumption. Nature of assumption के अंदर total output, income and employment etc. Microeconomics क्या देखता है? Microeconomics looks at the total output, income and employment or the general price level etc. Economic variable of microeconomics are given on the basis of their assumption, whereas microeconomics explain how allocation of resources takes place and how price of different commodities are determined. It studies the problem of optimal allocation of resources. On the other hand, microeconomics assumes allocation of resources, distribution of outlets, spending of particular goods and services, relative prices, etc. Now, on the basis of the assumption of macroeconomics explains how aggregate output, income, employment and price level etc. are determined in the economy as whole. Aggregate output, aggregate price level, aggregate employment, सब एग्रीगेट ढूंढना किसका काम होता है? मैक्रोइकोनॉमिक्स का काम होता है. तो हमें कीवर्ड्स पता चल गए हैं. कीवर्ड्स क्या है? इंडिविजुअल. चलो माइक्रोइकोनॉमिक्स के कॉलम में जाते हैं. तो माइक्रोइकोनॉमिक्स के पहले पॉइंट में क्या है कीवर्ड? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. Second keyword determines on price, quantity of individual market. Third keyword price, bottom up view, partial equilibrium analysis. And last है income and employment. Macroeconomics में अगर हम keywords देखते हैं तो behavior of the economy as whole deals with national income, total employment, national income and analysis of quasi general equilibrium. Now allocation of resources, distribution of output, इसका मतलब ये एग्रीगेट अमाउंट निकालता है और कुछ नहीं. यहाँ पे इसको ध्यान ना रख के तुम बस इतना ध्यान रखो कि एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट ढूंढता है, एग्रीगेट प्राइस निकालता है, एग्रीगेट सब कुछ एग्रीगेट निकालता है. तो इसको ध्यान में रखने की जगह जो एग्रीगेट शब्द है जो मैंने यहाँ पे समझाया था वो चीज ज्यादा ध्यान पे रखो. तो होपफुली ऐसे ही करके आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है. आप आगे की वीडियोस में डालते रहूंगी. आज का हमारा चैप्टर खत्म, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है. अब मैं कल नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगी. और सब्जेक्ट इसमें है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग. सो होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच मोर वीडियोस soon. Thanks for watching and stay connected.